Good afternoon, students. I'll wait for 1 more minute to join others and then we'll start. So in last class, we studied production. We completed all the factors of production also. We just had to discuss the features of production. Let me just open that slide also. I hope I'm audible to everyone. Please mute yourself, everybody, until you are in urge to speak anything. I hope I'm audible. I'm going to share my screen. Give me just 1 minute. Okay. I hope you can see my screen now. So the factors of production, the 4 factors of production we already covered in the last class, which were land, labor, capital, and entrepreneur. So we just were to discuss the features of entrepreneur. Rest all the things I have already completed. In any case, if you have any query related to the same topic or what we have discussed in the last class, just let me know. Okay, so I'm coming back to the lecture. We have covered features of capital also, that this is man-made. Supply is elastic. Entrepreneur, we have discussed. Entrepreneur is basically a person who brings the other factors of production, which is land, labor, which are land, labor, capital. This person, entrepreneur, brings all these factors together at one place, and we are able to make the production process happen. So because of this person, everything is going to happen, and the actual production is going to take place with the use of all the factors of production, whatever are required. Okay, so just feature I'll quickly cover and then we'll switch to new topic.
Entrepreneur's features are that he must be a good administrator. Administrator in the sense we can say when we say administrator, that means that he should be a good manager. He should be able to manage all the things well, which includes all the rest of the factors of production also. The management of the other factors of production जैसे कि land है, labor है या capital है, इन सब का proper use वो कर पाए. When I say proper use means there should not be any wastage, and every factor of production should be optimally used by him in the good manner. Then only he would become the good administrator. So the features of entrepreneur का सबसे important ये एक feature है कि वो एक अच्छा manager है, एक अच्छा administrator होना चाहिए, because everybody else is going to follow him. The other human capital or the other factors of production can be used by him only. Next is he must possess complete knowledge. Complete knowledge means anything and everything which is related to the production happening or any economic activity जिसकी production के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो entrepreneur को उसके बारे में complete knowledge होना चाहिए, तभी वो दूसरों को control, so that he should be able to use all that knowledge in order to excel all those things, in order to manage all those things. Complete knowledge अगर उसको नहीं होगी तो दूसरे factors of production, एक कहते हैं ना कि अगर हमें knowledge कम होगी और किसी सामने वाले person को ज़्यादा knowledge है अगर हमसे उसी काम की, तो वो he can make fool of us. So entrepreneur should have complete knowledge in order so that other factors of production, maybe other human capital, cannot misuse it. He must be a person of imagination. Imagination means because प्रोडक्शन आउटपुट इज गोइंग टू बी डिलीवर्ड इन फ्यूचर. हमें कुछ भी जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का आउटपुट अगर हम के बारे में हम अगर स्टडी करना चाह रहे हैं, तो वो हमारा इमेजिनेशन ही होगा, बिकॉज फ्यूचर में क्या आउटपुट निकलेगा हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस से, that we can only imagine. We cannot see it until it is actually going to be an output with us in our hands, whether it is a product or a service. एंड ही मस्ट बी ए मैन ऑफ एक्शन. मैन ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि करने वाला पर्सन होना चाहिए. एंटरप्रेन्योर सिर्फ बातें बनाने वाला अगर कोई पर्सन है कि ही वुड ओनली बी एबल टू स्पीक एंड ही डजंट नो हाउ टू वर्क, he cannot be an entrepreneur. You have to be, if the person has to be an entrepreneur, he has to actually be working. हम आपके बैकग्राउंड में नॉइज कुछ ज्यादा आ रही है. क्या नॉइज आ रहा है? अभी क्लियर है अंकित? मैम आपकी वॉइस तो क्लियर आ रही है, पर पीछे से एक्स्ट्रा नॉइसेस कुछ ज्यादा आ रही हैं. मैं अपना हेडफोन दोबारा से रिकनेक्ट करती हूँ एक बार. मैम उसमें दिक्कत नहीं, आपके बैकग्राउंड में नॉइसेस आ रही हैं, आपके आसपास कुछ नॉइस आ रही है बिना मतलब वाली फालतू की. कोई नॉइस नहीं है बैकग्राउंड में. नथिंग इज हैपनिंग ओवर हियर. And he must be a man of action means that the person should be delivering and should be believing in delivering the work rather than only just speaking. So he should be the man of action who would be able to do things and just not discuss. So ये एंटरप्रेन्योर के फीचर्स हैं. अभी हमने बिगिनिंग से जो भी कवर किया है वो सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चारों हमने पढ़ लिए. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. अगर किसी को इसमें कुछ क्वेश्चन है तो मुझे बताइए. प्रोडक्शन के ऊपर आपका जो भी क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको आज मैसेज किया है एमसीक्यू के लिए, तो एमसीक्यू में यहाँ तक सारा कुछ आने वाला है जो आपका नेक्स्ट एमसीक्यू होगा. थर्ड मॉड्यूल पूरा जिसमें कि हमारा डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड आ रहा था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ रहा था और डिमांड फोरकास्टिंग आ रहा था. ये सारे टॉपिक्स हैं, 4 मेजर टॉपिक्स हैं मॉड्यूल 3 में. और मॉड्यूल 4 का प्रोडक्शन एंड द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ये सब आएगा. And MCQ will take place on Wednesday in your class time only. I'll just share the link as per the time. इसमें या पुराने जो भी टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड फोरकास्टिंग, कुछ भी आपको क्वेश्चन किसी में भी है अभी तो मुझसे पूछ सकते हैं. आई विल देन स्टार्ट अ न्यू टॉपिक. जो मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ, दैट विल नॉट बी पार्ट ऑफ योर MCQ 2 और हम उसको MCQ 3 में कवर करेंगे. यहाँ तक जो ये टॉपिक है, ये तक आएगा आपका सिलेबस, जो मैंने मेंशन भी किया मैसेज में, आपको मिल गया होगा. किसी को कुछ और क्वेरी है?
असाइनमेंट्स आपने 2 फिल कर दिए। मैं आपको होपफुली आज या कल में ग्रुप में आपके जो नंबर ऑफ नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स हैं हु सबमिटेड मी द असाइनमेंट 1 एंड असाइनमेंट 2 व्हिच आई हैव कंसीडर्ड, मैं आपको उनकी लिस्ट दे दूंगी, तो आपको समझ आ जाएगा कि किस किसने असाइनमेंट सबमिट करा। इफ एनीबॉडी विल बी लेफ्ट, प्लीज लेट मी नो, और मे बी यू कैन शेयर इट। आई विल आल्सो चेंज माय ईमेल आईडी फ्रॉम द नेक्स्ट assignments, so that you would be sending the assignments on that email id only. जो पुरानी email IDs पे आपने मेरे को assignments 1 और 2 सेंड किया है उस पर नहीं करेंगे आप। और नेक्स्ट मैं आपको दूसरा न्यू आईडी दूंगी which is created for EIT only. So on that basically you would be able to share your next assignments. Any question, anything related to the topics we have covered until today, right from the beginning? शुरू से लेकर अब तक किसी भी टॉपिक में कुछ भी क्वेश्चन है तो मुझे बताइए, बिकॉज आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट न्यू टॉपिक व्हिच इज अगेन एन इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड इट्स लेंथी वन आल्सो. Next topic, if you will see in your syllabus in module 4, is law of variable proportion and scale. तो मैं आपको वो वाला स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अभी, जस्ट गिव मी अ मिनट. I'm going to start the आपको न्यू स्क्रीन दिख रहा है मेरा? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. Now nobody is answering me. क्या मैम? Yes, Ankit, can you see my screen now? And everybody can see my new screen? Yes मैम. Okay. Yes, ma'am. Thank you. So as you can see, the next topic is law of variable proportion and returns to scale. Give me a minute, I'm going to click your attendance and then I'll continue. My connection is little unstable today, so I'm clicking it now. Okay. So law of variable proportion एक है and returns to scale दूसरा एक टॉपिक है. इन दोनों में कंपैरिजन भी हम बाद में पढ़ेंगे. डिफरेंस क्या है, एक शॉर्ट रन के लिए होता है, एक लॉन्ग रन के लिए होता है. What does the law of variable proportion says and what exactly is returns to scale, we will study in this PPT basically. So we'll just study production functions क्या है जो हमने अभी पढ़ा. Production functions, production factors of production जो हमने अभी पढ़ा, land, labor, capital, entrepreneurs. इन सब factors of production को use करके we will be making the production process happen. And after the production, output हमारे पास कुछ भी हो सकता है. It can be a finished good or it can be a service also. So inputs हमारे पास factors of production हो गए, output हमारे पास हो गए ये कोई भी एक product. हम कुछ भी manufacture कर रहे हैं, कुछ भी whatever is going to be produced or manufactured in the organizations, maybe be it factories or be it any office also, because it depends on the nature of the product that what you are producing. If the nature of the product is such that it requires factories to be produced, then we will go for the factories for the production process, installation and all those things. लेकिन अगर हमारा कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो कि हमारे उसके लिए हमें फैक्ट्रीज को एस्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, like there are companies which are producing certain softwares, so that can be produced through coding, programming and all those things. So that can also be done within the office space or office area, but the inputs would remain either of these factors of production.
लैंड तो चाहिए होगा फॉर श्योर, लेबर भी चाहिए होगा, कैपिटल भी चाहिए होगा, एंटरप्रेन्योरशिप भी चाहिए होगा. नेचर ऑफ दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी डिफरेंट एज पर द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट वी आर प्रोड्यूसिंग. कहीं पर हमें जैसे लेबर है तो कहीं पर हमें ह्यूमन कैपिटल में किसी स्किल्ड लेबर की जरूरत होगी. अगर हमारा नेचर ऑफ प्रोडक्शन कुछ और है या हमारा जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोडक्ट आउटपुट जो है वो दूसरा नेचर का है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे इनपुट्स चेंज होते रहेंगे. रॉ मटेरियल एट टाइम्स अगर है, या मैन पावर की अगर हम बात करें, स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, सेमी स्किल्ड, कौन सा चाहिए होगा हमें, कौन सा ह्यूमन कैपिटल हमको ज्यादा चाहिए, किस क्वांटिटी में, कम चाहिए. अगर हम फैक्ट्रीज में डिप्लॉय करने तो शायद हमको ब्लू कॉलर लेबर ज्यादा चाहिए हो. अगर हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें हमें स्किल्ड लोगों की जरूरत है, तो मे बी वहाँ पर लेबर जो हमारा रहेगा, ह्यूमन कैपिटल रहेगा, वो हाई स्किल्ड लोगों को हम हायर करेंगे. तो इनपुट्स हमारे अकॉर्डिंगली चेंज होते रहेंगे डिपेंडिंग अपॉन दी आउटपुट वी आर एक्सपेक्टिंग और वी आर इमेजिनिंग. या हमारा जो मोटो है कि दिस वुड बी आर आउटपुट, कि हमारा प्रोडक्ट ये होगा. हम कार प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम क्या घर प्रोड्यूस कर रहे हैं. देयर आर सो मेनी रियल एस्टेट कंपनी व्हिच आर प्रोड्यूसिंग फ्लैट्स और these buildings they are producing. या बहुत सारे वो फ्लैट्स नहीं बना रहे हैं, वो सिर्फ कमर्शियल कुछ बना रहे हैं, बिल्डिंग्स या कुछ शॉप्स बना रहे हैं, व्हाटएवर. या हमारा प्रोडक्ट कुछ ऐसा है कि कंज्यूमेबल आइटम है, हम सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाते हैं, हार्ड ड्रिंक्स बनाते हैं, या हम कोई फूड बनाते हैं. तो अकॉर्डिंगली इनपुट्स हमारे चेंज होते रहेंगे डिपेंडिंग अपॉन व्हाट आवर आउटपुट इज एंड व्हाट यू फोकसिंग ऑन टू प्रोड्यूस. या कंप्यूटर्स है, या सॉफ्टवेयर है, या कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, कोई कुछ भी जो भी हमारा आउटपुट रहेगा. तो आउटपुट हमारा फिनिश्ड गुड हो गया, जो प्रोडक्शन प्रोसेस से होते हुए फाइनल प्रोडक्ट निकला, दैट इज आउटपुट. और जो भी हम कुछ इनपुट करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, वो हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो भी लास्ट टॉपिक कवर किया है उसमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ये सीक्वेंस से मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ सो दैट ये टॉपिक अगर मैं आपको पहले पढ़ाती तो आपको इनपुट्स, लैंड लेबर कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब क्या होता है ये आपको नहीं पता होता. So syllabus is given in such a way, it is in a sequential form, that if you are learning the previous topic first, then you're able to understand the next one in a better way. ठीक है, तो ये पीपीटी समझ आ गया. प्रोडक्शन फंक्शंस क्या है, हम इनपुट कर रहे हैं और कुछ वर्क इन प्रोग्रेस हो रहा है. प्रोडक्शन प्रोसेस को हम बोलते हैं बीच में वर्क इन प्रोग्रेस भी, या तो वो इनपुट्स के फॉर्म में रहेगा, रॉ मटेरियल के फॉर्म में रहेगा, या फिर वो अगर प्रोडक्शन प्रोसेस में बीच में कहीं पर भी है प्रोडक्शन, वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं हम उसको, WIP, और वो हमको फाइनल जो प्रोडक्ट दे देता है विच इज कॉल्ड फिनिश प्रोडक्ट, और जिसके लिए हम काम भी कर रहे हैं, प्रोडक्शन सारा कुछ कर रहे हैं, दैट इज आवर आउटपुट, जो हम एक्चुअल में सेल करेंगे मार्केट में और जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट होने वाला है हमको, या हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होने वाला है बिजनेस में. Improve production function and output. So production function we should be understanding before we study law of variable proportion and returns to scale. इन दोनों टॉपिक्स में रिलेटेड जो है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन की वो है क्या, और फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है और रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है. सो प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी इक्वेशन, टेबल, ग्राफ, कुछ भी जो प्रेजेंट करता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कमोडिटी दैट अ फर्म कैन प्रोड्यूस फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ इनपुट्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन एक ऐसी इक्वेशन या एक ऐसा ग्राफ या कोई भी एक सिचुएशन जो हमें ये बताए कि हम जो भी हमारा इनपुट है ना, इनपुट हमें पता है कि हमारे ये सारे इनपुट्स हैं, इतना हमारे पास मैन पावर है, इतना हमारे पास रॉ मटेरियल है, ये हमारी कैपिटल है, इससे ज्यादा कैपिटल फिलहाल हमारे पास नहीं है. और एक जो एंटरप्रेन्योर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का है, मे बी द हेड और द ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या अगर हम किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो हु इज एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, मे बी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अगर हम इकोनॉमिक लेवल पे बात करें तो वो कुछ भी जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उस गिवन इनपुट से हम मैक्सिमाइज अपने आउटपुट को कैसे कर सकते हैं, इज व्हाट प्रोडक्शन फंक्शन इज. कि प्रोडक्शन फंक्शन हमको बता रहा है कि ये तुम्हारे हमारे पास अगर डिफरेंट इनपुट्स हैं, इनको हम बेस्ट पॉसिबल मैनर में कहाँ पर कैसे यूज करें, जो कि एंटरप्रेन्योर का काम है बेसिकली टू कंट्रोल, सो दैट यू जस्ट सी कि देयर इज नो वेस्टेज इन दी इनपुट्स. जो हमारे पास इनपुट्स हैं, जो हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो मैक्सिमम उनका यूज हो सके या ऑप्टिमम यूज उनका हो सके विदाउट एनी वेस्टेज, सो दैट मैक्सिमम हमारा आउटपुट निकले इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. जैसे कि ह्यूमन कैपिटल की अगर मैं बात करूं, लेबर जो हमारा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्या वो अपने लेजर आवर्स तो नहीं है उसके, या वो फालतू तो नहीं बैठा है, फ्री तो नहीं बैठा है, मतलब इन हिज वर्किंग आवर्स व्हेन ही इज सपोज्ड टू वर्क, इज ही परफॉर्मिंग और इज ही नॉट परफॉर्मिंग. इफ ही इज नॉट परफॉर्मिंग, व्हाट आर हिज आइडियल आवर्स, वो आइडियल आवर्स में हम कितना पे कर रहे हैं उसको. सो ऑल दोस थिंग्स, इट इज पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर
he should check that the other rest of the factors of production are getting used in the best possible manner without any wastage, so that output जो है हमारा वो maximize हो सके. इसको हम क्या कह रहे हैं? Production function. This is production function, that how the production actually functions or takes place. Production function can be represented in the form of this mathematical formula which we represent as Q, या आप इसको PF भी बोल सकते हैं. जो भी आप नीचे बस उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि आपने Q को क्या लिया है और आपने क्या आपका क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है, ABC आपका क्या है. This is a mathematical formula to actually calculate the production function basically in any organization where we have a set of inputs and we are going to calculate what the factor of output would be. लैंड लेवल कैपिटल इंटरप्रेन्योर हमारे फैक्टर्स ऑफ इनपुट हैं जो हम इनपुट कर रहे हैं, विच इज यूज्ड थ्रू अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड टू गेट अ क्वांटिटी ऑफ आउटपुट. सो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बेसिकली विल बी डिपेंडिंग अपॉन दिस पर्टिकुलर थिंग. फैक्टर्स जो भी हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे, उनको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे अपने सारे फैक्टर्स ऑफ इनपुट से जो चारों हैं, तो देन इट विल गिव अस द आउटपुट. प्रोडक्शन फंक्शन जो है दो तरह से हो सकता है, या तो एक लॉन्ग रन में होगा, शॉर्ट रन में होगा. शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन का केस क्या है? व्हेन द प्रोड्यूसर विल कीप ऑल हिज फैक्टर्स फिक्स्ड फैक्टर्स कांस्टेंट, यानी कि शॉर्ट रन जो होता है हमारा, वो शॉर्ट टाइम जो है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उसमें हम फिक्स्ड जो हमारी कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट जो है हम उसको चेंज नहीं कर सकते. मैं आपको एक छोटा एग्जांपल दे देती हूँ. एक अपना बिजनेस का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि वी एज एन एंटरप्रेन्योर आर रनिंग अ कंपनी. सपोज ABC एक पर्सन है जिसके पास एक कंपनी है, वो अपनी एक छोटी सी कंपनी रन करते हैं 10 लाख रुपीस का, जिसका कैपिटल है कुछ है. तो वो पर्सन बेसिकली जब स्टार्ट करेगा बिजनेस तो वो कहीं अपना एक छोटा सा ऑफिस लेगा, कैन बी ऑन रेंट, ही कैन बाय इट ऑल्सो. दैट बिकम्स इज फिक्स्ड कॉस्ट. अब उसमें अगर उसको लगता है कि 10 लोगों को बिठाना है या 20 लोगों का ह्यूमन कैपिटल का उसको अरेंजमेंट करना है, तो उसने अपना एक लैंड कहीं पर प्रोक्योर कर लिया, या ऑफिस या फैक्ट्री वट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन, वो प्रोक्योर कर लिया, एंड देयर वुड बी सम फिक्स्ड कॉस्ट टू बी पेड एज रेंट उस पर्टिकुलर एरिया को यूज करने के लिए. अब वो शॉर्ट रन में चाहे तो इस फिक्स कॉस्ट को चेंज नहीं कर सकता. शॉर्ट रन का मतलब हर मंथ क्या हम अपना ऑफिस चेंज कर सकते हैं? हर मंथ या मे बी आफ्टर 2 मंथ्स 3 मंथ या 6 मंथ्स के टाइम में हम ना तो अपना ऑफिस चेंज कर पाएंगे, बड़ी बड़ी मशीनरीज जो फैक्ट्री में इंस्टॉल हो जाती है हम वो भी नहीं चेंज कर पाएंगे. तो वो कॉस्ट जो हमारी एक बार लग गई एंड हमको वो लॉन्ग रन में चेंज नहीं, लॉन्ग रन में ही हम कर पाएंगे चेंज, शॉर्ट रन में हम चेंज नहीं कर सकते. देयर वी अज्यूम दैट आवर फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम. अब हमने एक ऑफिस ले लिया जिसका सिटिंग कैपेसिटी इज लाइक 20 पीपल और से 25 पीपल. अब देयर इफ वन पर्सन सिट्स और इफ वी हायर 20 पीपल, द कॉस्ट विल रिमेन सेम. कोई रेंट हमें कम तो नहीं देना पड़ेगा. whether the person would be deployed as 1, 2, 4 और 20 people, वो कॉस्ट सेम रहने वाला है. हाँ, जो हम हायर करेंगे किसी पर्सन को तो जो उनका सैलरीज या अदर थिंग्स होगा वो हमारा वेरिएबल कॉस्ट में होगा, वो हम वेरी कर सकते हैं शॉर्ट रन में. कि अगर एक पर्सन होगा तो उसकी सैलरी का कॉस्ट कम होगा, 10 लोग होंगे तो वो कॉस्ट ज़्यादा होगा. लेकिन जो फिक्स कॉस्ट आ गया विच इज़ लाइक कॉस्ट ऑफ द लैंड और where we have actually established thing, or maybe cost of a factory where we have established so many production system, बड़ी बड़ी मशीनरीज लगा दी हमने प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, that will remain fixed. तो शॉर्ट रन में हमको ये ध्यान रखना है कि फिक्स्ड फैक्टर्स जो हैं वो कांस्टेंट ही रहेंगे. उसका कॉस्ट हम ना तो चाहकर भी कम कर सकते हैं, ना तो चाहकर भी ज़्यादा कर सकते हैं. तो हमारे लिए शॉर्ट रन में फ़ायदा किस चीज़ में है कि हम प्रोडक्शन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा करें. प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट का है, फिक्स्ड कॉस्ट जो कांस्टेंट है बेसिकली, वो फिर जितना ज़्यादा हम प्रोडक्शन करेंगे उसमें डिवाइड हो जाएगी. तो हमारी कॉस्ट बेसिकली टू प्रोड्यूस विल कम डाउन. शॉर्ट रन में हमारे पास प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का तरीका यही है सिर्फ एक, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करें, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट को हम कम तो कर नहीं सकते हैं ले देकर, और वेरिएबल कॉस्ट हमारी जो होती है वो बढ़ेगी. जैसे मैंने आपको बताया, इफ देयर विल बी 10 पीपल देयर विल बी मोर कॉस्ट ऑफ मे बी सैलरीज और मोर कॉस्ट हायरिंग कॉस्ट फॉर देम, जो चेंज होगी. या अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें तो रॉ मटेरियल ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा चाहिए होगा, कम के लिए कम चाहिए होगा.
तो शॉर्ट रन में अगर हम बात कर रहे हैं, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. सो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विल बी अप्लाइंग वेयर it will be applying in the short run where the fixed factors are constant. Fixed cost को हम कम नहीं कर पा रहे हैं चेंज करके भी, it will remain same. So in order to maximize the profit, we have only one mantra. What is that? To increase the production so that that fixed cost is divided among more number of units produced and we can maximize the profit. Law of variable proportion जो main एक टॉपिक हमारा है जो हम पढ़ रहे हैं, मैंने आपको प्रोडक्शन फंक्शन इसलिए पढ़ाया क्योंकि प्रोडक्शन फंक्शन के पार्ट्स हैं शॉर्ट रन और लॉन्ग रन. तो जो शॉर्ट रन का प्रोडक्शन फंक्शन है दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड लॉन्ग रन जो है वो हम अप्लाई करेंगे रिटर्न्स टू स्केल. अब लॉन्ग रन पे आते हैं. लॉन्ग रन एक ऐसा है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन जिसमें कि हम सब कुछ चेंज करने के लिए कैपेबल हैं. से इफ यू टॉक अबाउट 5 years और 10 years का टाइम है, तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट हमने अभी क्या पढ़ा. फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, कोई हमने फैक्ट्री स्टैब्लिश कर लिया, हमने कोई न्यू ऑफिस स्टैब्लिश कर लिया, रेंट पर ले लिया या हमने बाय भी कर लिया. तो 10 years 5 years का टाइम इतना ज्यादा है कि हम आफ्टर दैट टाइम वी कैन एक्चुअली चेंज दैट ऑल्सो. If we would want to start a new office and we would want to expand, so we can go for that option also. And if we really think that we are not producing that much और हमारा fixed cost बहुत ज़्यादा है depending upon what our output is और हम उसको contract करना चाहते हैं यानी कि कम करना चाहते हैं expand की जगह, तो हमको सस्ता ऑफिस भी देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा फैक्ट्री establishment में कॉस्ट लग रहा है सपोज 2 lakhs rupees, so we can go to a cheaper option. Maybe we can find some other place which is cheaper for us to establish our maybe factory or whatever new office or something जो कि हम शिफ्ट कर सकते हैं. बट शॉर्ट रन में ये नहीं हो सकता. हम ऑल द टाइम या एवरी ईयर वी कैन नॉट थिंक ऑफ चेंजिंग द ऑफिस और थिंक ऑफ चेंजिंग द मशीनरीज और ब्रिंगिंग न्यू मशीनरीज इन द सिस्टम, रिप्लेसिंग द ओल्ड मशीनरीज विद द न्यू. ये हम शॉर्ट रन में नहीं कर सकते. तो लॉन्ग रन में हमें ये देखना है वेरिएबल जो फैक्टर्स होते हैं यानी कि जो वेरिएबल इनपुट्स हैं वो तो वेरी करेंगे ही करेंगे, शॉर्ट रन में भी वेरी कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग रन में हम सारी कॉस्ट्स को वेरिएबल कॉस्ट कंसिडर करते हैं. यानी कि जो हमारी फिक्स कॉस्ट भी थी हम सब कुछ को चेंज कर सकते हैं, सारी कॉस्ट को चेंज. हु इज देयर हु इज अनम्यूटेड हिमसेल्फ? इज समबडी? प्लीज म्यूट योरसेल्फ गाइस. आयुषी. ठीक है. So in this case means in long run production functions case, the producer will vary all his factors inputs both fixed as well as variable. यही मैंने आपको बताया कि हम जो भी प्रोड्यूसर है जो प्रोड्यूस कर रहा है he can vary all the vary का मतलब change, he can change all his factors of inputs, चाहे वो fixed inputs हैं या variable inputs हैं, सबको वो variable inputs consider कर सकता है. and this is example इसका क्या है, law of returns to scale. So the syllabus में जो if you refer to syllabus, the topics which are mentioned in your syllabus are law of returns to scale and law of variable proportion. So whenever if you get a question, you will start it with production function. What exactly is production function? Then it is about two types, short run and long run. If we talk about long run, it is returns to scale. If it is short run, it is returns to variable, law of variable proportion. Variable proportion से आप समझ सकते हैं short run variable proportion यानी कि सिर्फ variable cost ही चेंज हो सकेगी, फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं हो सकेगी. और रिटर्न्स टू स्केल का मतलब है कि इसमें कोई भी कॉस्ट हो फिक्स्ड या वेरिएबल दैट कैन बी चेंज्ड एट एनी स्केल. दैट इज व्हाई इट इज रिटर्न्स टू स्केल. अब फैक्टर्स जो इनपुट हैं हमारे, जैसे हमने लैंड लेबर कैपिटल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ लिए हैं, उसमें से कुछ जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट होती है और कुछ जो है वो वेरिएबल कॉस्ट होती है. टू टाइप्स ऑफ फैक्टर इनपुट्स हो गए, फिक्स्ड और वेरिएबल. फिक्स में कौन कौन से आ गए, क्वांटिटी ऑफ विच रिमेन्स द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म. फिक्स्ड जो इनपुट होते हैं जैसे मैंने आपको बताया वो फिक्स्ड जैसा नहीं है, रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ द आउटपुट की number of units we are producing, whether it is 10,000 or it is 10 crores or it is 10 lakhs, whatever units or outputs we are producing, fixed cost is going to be same. So the quantity of which remains the same irrespective of level of output produced by the firm.
इज फिक्स्ड कॉस्ट, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरीज, जो मैंने आपको बताया ये लॉन्ग टर्म वाले हो गए। इनमें पैसा एक बार लगा दिया हमने, तो बिल्डिंग में अब कितना भी काम हो, वेदर 1 person इज प्रोड्यूसिंग, वेदर 1000 people आर प्रोड्यूसिंग, इस कॉस्ट विल रिमेन सेम। लैंड का हम लोग कुछ भी कॉस्ट कम नहीं कर सकेंगे, ज़्यादा भी नहीं कर सकेंगे, तो ज़्यादा अगर प्रोड्यूस करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। और वेरिएबल इनपुट्स कौन से हो गए? क्वांटिटी ऑफ विच वेरीज द लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय द फर्म। वेरिएबल इनपुट्स वो होते हैं जिसमें कि प्रोपोर्शनेटली ये कॉस्ट जो है, यानी कि इनपुट की जो कॉस्ट है वो वेरी करेगी, चेंज करेगी डिपेंडिंग अपॉन द आउटपुट प्रोड्यूस्ड। अगर हमने 100 यूनिट्स बढ़ाए, अब हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए इनपुट लगेगा वो रिस्पेक्टिवली, अगर हम 1000 प्रोड्यूस करेंगे तो उससे कम लगेगा। यानी कि अगर 100 प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वेरिएबल इनपुट्स कम है, 1000 प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वेरिएबल इनपुट्स ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर प्रोड्यूसिंग एनी प्रोडक्ट विच इज रिलेटेड टू आयरन, कि हमने कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने, किसी मेटल का है, मे बी प्लास्टिक और व्हाटएवर, तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो हमारा इनपुट एज रॉ मटेरियल लग रहा है, प्लास्टिक हो गया या आयरन हो गया, तो वो क्वांटिटी ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा रॉ मटेरियल लगेगा, क्वांटिटी कम प्रोड्यूस करने के लिए कम लगेगा। मे बी आयरन है या प्लास्टिक है या व्हाटएवर है, कोई फ्यूल है, कुछ भी है, तो ये वेरिएबल कॉस्ट होगी। तो वी जस्ट हैव टू कीप इन माइंड दैट क्वांटिटी ऑफ विच वेरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट और विद द क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस्ड, वो वेरिएबल इनपुट्स हैं। फिक्स्ड इनपुट्स आर वेयर दे आर नॉट वेरिंग और दे आर नॉट चेंजिंग एंड दे रिमेन कांस्टेंट with the level of output produced, those are the fixed cost। ठीक है, एग्जांपल्स फिक्स्ड कॉस्ट का लैंड बिल्डिंग हो गया, वेरिएबल इनपुट्स का हो गया रॉ मटेरियल, पावर हो गया, फ्यूल हो गया, कुछ भी हो गया। जैसे पावर यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि suppose within the land or the building there are like few of the cabins are used or few of the people are there in the office, so they would be using accordingly, the power would be used accordingly, the number of people are there। if it is the complete building is running as or using the power, then it will be more। तो ये कम और ज़्यादा हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्शन। और दूसरा हो गया ह्यूमन फैक्टर का कॉस्ट भी, अगर 10 लोग एम्प्लॉयड है तो 10 लोगों का जो कॉस्ट है वो ऑब्वियसली कम होगा देन दैट ऑफ 15 या 20 लोगों को अगर हम हायर करेंगे। तो 15-20 पीपल, वाई वुड वी वुड इंक्रीज, we would only increase when we would actually want to increase the output level। तो ये वेरिएबल हो गया। ठीक है, लेबर भी आ गया यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट भी आ गया। ट्रांसपोर्ट कैसे आ गया, अगर हम 1000 यूनिट को ट्रांसपोर्ट हमें अपने गराज से सपोज या स्टोर से मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो जो ट्रांसपोर्ट लगेगा वो कम होगा रादर देन दैट ऑफ इफ यू विल इंक्रीज दैट आउटपुट। वही अगर 10,000 यूनिट को हमें ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली ज़्यादा हमें कॉस्ट लगेगा। तो ये वेरी कर रहा है आउटपुट से, वेरिएबल कॉस्ट हो गई। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गुड्स। टीपी क्या, ये सारी टर्मिनोलॉजीज हैं। वी कैन आस्क व्हाट इज टोटल प्रोडक्ट, यू शुड बी नोइंग द टोटल प्रोडक्ट इज ओके व्हाटएवर द नंबर ऑफ गुड्स और द सर्विस, टोटल वॉल्यूम बेसिकली इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एनी स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। एक फाइनेंशियल ईयर का अगर हम पूछें टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स क्या प्रोडक्शन था हमारा से 1920 में या 2021 में या किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में या 2 फाइनेंशियल ईयर में या कंसोलिडेटेड 5 years ऑफ टोटल हमारा वॉल्यूम क्या था। तो टोटल product is that basically the volume of goods we are producing during a specified period of time। and then specify मतलब क्या हम specify करें, कौन सा पीरियड, 18-19 की बात करें, 19-20 फाइनेंशियल ईयर की बात करें, 10 सालों की बात करें, whatever। total product can be raised only by increasing the quantity of variable factors employed in the production। total product को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, क्योंकि फिक्स फैक्टर्स को तो हम इंक्रीज नहीं कर रहे, वेरिएबल फैक्टर्स को ही इंक्रीज करके अपना इनपुट को बढ़ा के हम आउटपुट को ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। ज़्यादा मैन पावर लगा के, ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल लगा के, ज़्यादा लेबर लगा के, ज़्यादा रॉ मटेरियल को इनपुट करके हम आउटपुट की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। दिस इज व्हाट इट इज। Give me 2 minutes. I am going to click your attendance again because some people have joined now.
Okay. So we have understood these terminologies. Total product क्या होता है, variable cost क्या होता है, fixed cost क्या होता है, production function क्या होता है, और शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हम शॉर्ट रन में होता है, लॉन्ग रन में हम रिटर्न्स टू स्केल पढ़ते हैं. ये सारी टर्मिनोलॉजीज हमें क्लियर हो गई अभी तक. What is average product? Average product is, it can be known by dividing the total product जो भी हमारा है. Total product we already studied that the volume, total volume we have produced, output का. Average product कैसे निकलेगा? Total product को हम divide करेंगे by the number of units of the variable factor. Variable factor जो हमारा variable inputs लगे उससे divide करेंगे तो हमारा average product आ जाएगा. Marginal product क्या होता है? It is the output derived from the employment of one additional unit of a variable factor. Marginal product क्या हुआ? Total product हमने suppose हम दो चीजों का comparison लेते हैं. Variable product लेते हैं, variable एक input लेते हैं हम, ठीक है, variable input, और दूसरी तरफ हम लेते हैं हमारा total output. Total output यानी कि TP. 100 वेरिएबल 100 यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट को अगर हम इनपुट करते हैं तो फॉर एग्जांपल हमको 100 को इनपुट करने से 100 मिल रहा है. एक और वेरिएबल इनपुट की क्वांटिटी को हम अगर एम्प्लॉय करते हैं तो उससे अगर हमें एडिशनल एक और यूनिट जो मिल रहा है, एडिशनल जो यूनिट मिल रहा है हमको, या वो एक है, वो दो है, वो कितना है, दैट डिफरेंस बेसिकली इज मार्जिनल प्रोडक्ट. मार्जिनल प्रोडक्ट, जैसे हमने मार्जिनल यूटिलिटी भी पहले पढ़ा था एक बार, कि कुछ भी अगर हम वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज कर रहे हैं इनपुट को, यानी कि हमने रॉ मटेरियल थोड़ा सा क्वांटिटी में ज्यादा बढ़ा दिया, अभी हम 100 यूनिट्स यूज कर रहे थे, अभी हमने 110 या 101 या कुछ भी एक एडिशनल हमने इनपुट अपना वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाया, उसकी वजह से फॉर श्योर हमारा आउटपुट बढ़ने वाला है. वो कितना बढ़ेगा, दैट इज मार्जिनल. मार्जिनल बेसिकली इज द difference in the total product by adding additional unit in the variable input. The rate at which the total product increases, यानी कि total output जो हमारा है वो increase कर रहा है, कि कब increase करेगा, जब हम थोड़ा बहुत भी अपना variable factor को increase कर रहे हैं. Addition to the total product resulting from the unit increase in the quantity of the variable factor. तीनों statements same है, जिससे भी आपको समझ आ जाए कि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है. आउटपुट डिराइव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एनी एडिशनल यूनिट इन द वेरिएबल फैक्टर, या फिर किस रेट पर टोटल प्रोडक्ट जो हमारा टीपी है वो इंक्रीज हो रहा है, वो भी मार्जिनल प्रोडक्ट है, या फिर टीपी में क्या एडिशन हो रहा है एज द यूनिट अगर हम वेरिएबल फैक्टर को इनपुट करें. तीनों स्टेटमेंट्स आर सेम, इज जस्ट दैट द डिफरेंट स्टेटमेंट्स आर गिवन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट और द पर्टिकुलर टर्म इन अ बेटर मैनर. प्रोडक्शन के ना 3 स्टेजेस होती हैं. हम 3 स्टेजेस पढ़ेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में भी, और 3 ही स्टेजेस पढ़ेंगे रिटर्न्स टू स्केल में भी. टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल और एवरेज. इस पर्टिकुलर मैं आपको नेक्स्ट उसमें क्लास में समझाऊंगी, इट विल टेक टाइम. इट्स जस्ट दैट कि हम स्टेजेस अब पढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन के स्टेजेस पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने ये अज्यूम किया है कि लैंड कैपिटल जो हमारे फिक्स्ड फैक्टर है वो सेम रह रहे हैं. आप देखिए फर्स्ट कॉलम में लैंड एंड कैपिटल व्हिच इज आवर फिक्स्ड कॉस्ट, हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा फिक्स्ड कॉस्ट वो 10 यूनिट्स है. वर्कर्स का जो हमारा है वो वेरी कर रहा है. ह्यूमन कैपिटल, अगर हमें ज्यादा प्रोडक्शन करवानी है तो ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी, कम प्रोडक्शन करवाएं तो कम लोग भी काम कर सकते हैं, तो वो वेरी करेगा. तो ये वेरिएबल फैक्टर हो गया हमारा वर्कर्स या लेबर्स भी लिख सकते हैं आप इसको, ह्यूमन कैपिटल जिसे हमने कहा. और टोटल प्रोडक्ट जो हमारा निकला, से इसको हम फिगर्स को ले रहे हैं कि 6 टन या 32 टन या 14 टन 42 व्हाटएवर दीस फिगर्स आर गिवन, ये हमारा टोटल प्रोडक्ट है. टोटल प्रोडक्ट हमने पढ़ ही लिया है कि क्या है. टोटल प्रोडक्ट इज द वॉल्यूम व्हिच वी हैव प्रोड्यूस्ड
by using variable or the fixed inputs. टोटल प्रोडक्ट हमारा ये है, मार्जिनल हमने भी पढ़ा, डिफरेंस इससे आपको समझ आ जाएगा मार्जिनल भी क्या है और एवरेज भी क्या है। और स्टेजेस हमारे इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और नेगेटिव ये कैसे हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाती हूँ, बिकॉज इट इज लाइक जस्ट अ मिनट नाउ एंड आई जस्ट टेक इट इन द नेक्स्ट क्लास। अंटिल नाउ इससे पहले तक का सबको क्लियर है सब कुछ? फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज, ये सब चीजें जरूरी थी टू अंडरस्टैंड दीस थ्री स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। सो वी स्टडीड ऑल दोस टर्मिनोलॉजीज before we reach this particular stage. Although this is the only topic which we have to study, but ये सारी terms हमको पहले understand करना जरूरी था। Thank you so much for your time. So I'll just continue the same in the next class. Okay. Bye bye.